Congress MP Shashi Tharoor, who's lashed out at the BJP. This after the Bharatiya Janata Party had lashed out at Tharoor and claimed that Tharoor exposed the tie-up between Congress and Soros. Remember, they had referred to an old, in fact, post by Shashi Tharoor where he referred to George Soros as a good friend, as an old friend. And Tharoor now has responded to that, saying all of BJP's charge about George Soros is absolutely ridiculous. Listen into what Tharoor had to say. I find this is utterly ridiculous. I think the purpose of Parliament is to provide a forum for serious discussion of the people's issues and people's problems. And the government should understand that it is in their interest to let the opposition have its say. And then they can respond as appropriate. That's what Parliament's for. It's a deliberative forum. Allowing a situation to exist in which opposition wants to raise issues, they're not allowed to raise it. Government wants to then raise issues deliberately to provoke the opposition with this topic. This kind of thing is utterly reprehensible. And I honestly believe that we are doing our parliamentary democracy, indeed our democracy itself, a major disservice. And let's get your details of what played out in Parliament over the Soros controversy. Remember, the BJP has claimed Sonia Gandhi has links with an organization that's funded by the George Soros Foundation, and therefore they've used it to demand answers from the Congress in the Rajya Sabha as well. Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju slammed Congress, alleging that the opposition was resorting to only dividing the country. Now, the BJP's allegation is that an organization identified as FDL-AP Foundation, which has links to Soros, has backed the view that Kashmir should be a separate nation. And according to the BJP, Sonia Gandhi is among the co-presidents of this firm, of this organization. The BJP also has shared an old post by Congress MP Shashi Tharoor, where he addressed Soros as an old friend and a concerned world citizen. It is to that that Tharoor's reaction has just come in, which we played out for you, where he's rubbished the allegations. The Congress has hit back at the BJP, saying the Modi government has sold the country to Adani and referred to all of this as diversionary tactics. Interestingly, days after the BJP accused the US State Department of trying to destabilize India, the US Embassy in New Delhi on Saturday said that it was disappointing that these kind of allegations were being made about a deep state. तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को-प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, हैं। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है, वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है। और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है। और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं
जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। ये देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, और मैं सभापति जी आपको बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज टेकन अ लॉन्ग लीप एंड नाउ इंडिया, which was 11th economic power in the world, has now become the 5th economic power in the world. 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है और अब तीसरी आर्थिक शक्ति के लिए आगे बढ़ चला है। इसके साथ साथ जो हम विकसित भारत संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे जॉर्ज सोरोस और उनके फाउंडेशन को चिंता हुई है और उनके माध्यम से, ये बहुत से संगठनों के माध्यम से वो भारत में डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं, और उस अस्थिरता के कांग्रेस टूल बन रही है। कांग्रेस उसका शस्त्र बन रही है और इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और गहन चर्चा होनी चाहिए। George Soros and many other elements who are working against India are to be countered unitedly by every citizen of India. That is my point. Whether it is Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, or Shashi Tharoor ji, or anybody, I am not into any particular individual. What I am saying is, anybody found to be colliding with or working in tandem with anti-India elements must be countered unitedly by all political parties, in fact every citizen of India. That is my limited point. एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेन जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता।
ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। संसद नहीं चल पा रही, आज तीसरा हफ्ता है, हम देख रहे हैं आज फिर से, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो, उस वजह से संसद नहीं चल पा रही है। क्या इसका समाधान है? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विदेशी फंडिंग को लेकर जो गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे, उनके नेतृत्व पर लगे, उस पर वो पाक साफ नहीं आ रहे, कोई जवाब नहीं आ पा रहा। ये जो तार विदेशी फंडिंग के जुड़े हैं, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो बार बार प्रयास होते हैं, उसमें हथियार के रूप में क्यों बन जाते हैं? और 140 करोड़ लोगों की आवाज को सदन के अंदर क्यों नहीं उठने दिया जाता? कौन सी मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि सदन नहीं चलने देना? रेल मंत्री बोलना चाहते थे, जवाब नहीं देने की। क्या मजबूरी है और कौन मजबूर कर रहा है? क्या 140 करोड़ भारतीयों की आवाज सदन के अंदर नहीं सुनाई देनी चाहिए? क्या मुद्दे खत्म हो गए विपक्ष के पास? पहले आप आरोप लगाते थे कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती संसद चले। हम सारे सांसद वहीं बैठे, मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हल्ला करके अगर वेल में आओगे, हाउस ऑर्डर में नहीं होगा, तो मंत्री कहां से जवाब देंगे? क्या सोरोस के मुद्दे पर आप लगातार ये मांग करते रहेंगे कि इस पर चर्चा हो सदन के अंदर? इससे बड़ी बातें और भी हैं, ये तो कांग्रेस को जवाब देना है, वो इस पे जवाब दें, स्पष्टीकरण दें, क्यों नहीं देते? There's a debate now, Adani versus George Soros, and to the hilt that Nishikant Dubey says all these disruptions are funded by him. See, the fact that the corporate house has been indicted by the Department of Justice is a fact. There are papers, there is an indictment, and those indictment is linked to events which happened in India. All we are asking is for an investigation here. All the other things which they are saying are realms in the dark web and in deep state theories, are all dark fantasies or nightmares these people have. These all should be discarded. There is no credence to all these things. We are nationalists, we are patriots, we are for the unity and the sovereignty of the union. सही लिंक्स तो जॉर्ज सोरोस के बीजेपी के साथ है, क्योंकि विदेश में बैठते हैं, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी उनका चलाती है। आज अगर महंगाई की बात होती है, वो देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार अडानी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, वो हमारे देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। आप चर्चा भटकाने का काम कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है जॉर्ज सोरोस स्पॉन्सर है। आपको लगता है कि आज पार्लियामेंट चल पाएगी? पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा, अगर नहीं चल पाएगी, ये केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति है अडानी को बचाने के लिए। ये लोग अडानी के दलाल बन, ये बोलते जाएंगे तो बोलने दीजिए ना। अगर इतना ही पता है हमारा फंडिंग है विंडिंग है, तो उसको पकड़ लो। क्या कर रहे हैं? गधे पाल रहे हैं बैठ के? कुछ तो करिए फिर। This kind of diversionary tactics to save Adani is the story now. This past 3 days we can see that BJP don't want the parliament to function. They want the parliaments to be adjourned, or because the opposition parties, we are not disturbing the parliament, we are protesting outside the parliament, demanding unique methods. We are protesting to highlight the Adani scam. In that case, BJP wants that not reported in the media. Therefore, they are bringing these kind of things in the parliament, inside the parliament. They don't want the parliament to function because we are raising the Adani issue. बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यात्मक निकला नहीं।